A very good morning to everyone. I welcome you all in this online lecture series, which is on the subject property law including easement. मैं आप सभी का इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2। ये इस विषय पर मेरा द्वितीय लेक्चर है, यानी कि दूसरा लेक्चर है। In my first lecture, I have told you about the contents of unit first. मेरे प्रथम लेक्चर में मैंने आपको यूनिट फर्स्ट की विषय वस्तु से अवगत कराया था। एंड आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर पेपर्स। और मैंने यूनिट फर्स्ट से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी आपको बताया था। एंड वी हैव स्टार्टेड आवर क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। एक्सप्लेन द रूल अगेंस्ट परपीचुइटी एंड डिस्कस इट्स एक्सेप्शंस। इफ यू कैन रिकॉल the lecture number 1, in my lecture number 1 I have divided this question into two parts. First part, in first part we have discussed rule against perpetuity, and second part was what are the exceptions of this rule. We have started our discussion on part 1. In part 1 we have seen the meaning of term perpetuity. After that I have told you about meaning of phrase transfer in perpetuity. शाश्वत अंतरण क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ मेरे प्रथम लेक्चर में। आफ्टर दैट आई हैव टेल यू अबाउट द टू मोड्स थ्रू विच अ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड इन परपीचुइटी। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको दो मोड्स बताए थे जिनके जरिए शाश्वतता क्रिएट या सृजित की जा सकती थी। उसके बाद हमने शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उद्देश्य को भी जान लिया था। एंड इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट द रूल अगेंस्ट परपीचुइटी अप्लाइज टू बोथ टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, वेदर दैट इज मूवेबल और इमूवेबल। शाश्वतता के विरुद्ध नियम दोनों ही प्रकार की प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को लागू करता है, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति। इन दिस लेक्चर वी विल सी व्हाट इज बेयर प्रोविजन, एंड देयर आफ्टर वी विल सी what is the meaning of rule against perpetuity according to this section, and we will discuss the exceptions of this rule. Rule against perpetuity, शाश्वतता के विरुद्ध नियम, is provided under section 14 of Transfer of Property Act 1882. शाश्वतता के विरुद्ध नियम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में दिया गया है। सेक्शन 14 provides that no transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or
more persons living at the date of such transfer, and minority period of some person who shall be existence at the expiration of that period, and to whom, if he attain full age, the interest created is to belong. शाश्वतता के विरुद्ध नियम इस प्रकार है। कोई भी संपत्ति अंतरण ऐसा हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के और किसी व्यक्ति की जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो, जिसे यदि वह पूर्ण व्यय प्राप्त करें तो वह सृष्ट हित मिलना हो, अप्राप्त व्ययता के पश्चात प्रभावी होना है। ओके, नाउ we will scrupulously observe this bare provision and we'll see what is rule against perpetuity. No transfer of property. For the application of this section, there must be a transfer of property. Through the transfer of property, an interest must be created in that property. Such interest is to take effect when after the lifetime of one or more persons, and these persons must be living at the date of such transfer. यानी उस अंतरण की तिथि को इन व्यक्तियों का जीवित होना जरूरी है। And minority of some person who shall be existence at the expiration of that period, okay, and minority period of some person. Here the minority period is 18-year age. Okay, a person attains majority at the age of 18 years. Okay, and the person to whom interest belongs must be in existence at the expiration of that period. It means expiration of prior interest holder or last prior interest holder, and to whom, if he attain full age, the interest created is to belong. ओके, इन शॉर्ट यहाँ पर एक परपिचुइटी क्रिएट की जा सकती है जो कि इस सेक्शन द्वारा अलाउ है। वो परपिचुइटी क्रिएट की जा सकती है टिल द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर persons living at the date of such transfer. Till the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer, and minority period of some person to whom such interest belongs. यानी यहाँ पर शाश्वतता क्रिएट की जा सकती है प्रायर इंटरेस्ट जिन व्यक्तियों के फेवर में किया जाता है उन व्यक्तियों के जीवन काल, और माइनॉरिटी पीरियड ऑफ द पर्सन टू whom द प्रॉपर्टी बिलोंग्स. यहाँ तक परपिचुइटी क्रिएट की जा सकती है. बट एनी ट्रांसफर विच goes beyond this period would be inoperative and void because of violation of rule against perpetuity. ओके, यानी यहाँ पर शाश्वतता
का सृजन किया जा सकता है। शाश्वतता का सृजन किया जा सकता है जो जीवित व्यक्ति हैं उनके जीवन काल तक प्लस 18 साल तक। अगर कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इसके बियॉन्ड जाता है, इस पीरियड के बियॉन्ड जाता है, यानी सपोज एक ट्रांसफ़र किया जाता है जिसमें संपत्ति का अंतरण किया जाता है व्यक्तियों के जीवन काल तक के लिए, और जिस व्यक्ति को ये प्रॉपर्टी जानी है उसको प्रॉपर्टी दी जाती है 21 साल पर, देन ये जो उदाहरण मैंने दिया है इस उदाहरण में ट्रांसफ़र इज़ इन परपिचुइटी, ये शाश्वत अंतरण माना जाएगा एंड इट इज़ हिट बाय सेक्शन 14, और ये सेक्शन 14 के द्वारा वॉइड कर दिया जाएगा बिकॉज रूल इज़ अगेंस्ट परपिचुइटी एंड द परपिचुइटी पीरियड जो कि क्रिएट किया जा सकता है वो है लाइफ टाइम ऑफ लिविंग पर्सन्स और लाइफ इंटरेस्ट होल्डर के जीवन काल तक प्लस माइनॉरिटी पीरियड ऑफ द पर्सन टू whom इंटरेस्ट इज गिवन। ओके, any number of life interest is created in favor of persons provided they are living on the date of transfer। ठीक है, अगर ऐसा हो कि जो व्यक्ति जिसको ये प्रॉपर्टी जानी है, इफ़ ही इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, यानी जो लास्ट इंटरेस्ट होल्डर है उसके जीवन काल में यदि वो व्यक्ति जिसको प्रॉपर्टी जानी है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आता है तो प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल ओनर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिसको प्रॉपर्टी दी जा रही है उसका एग्जिस्टेंस में होना ज़रूरी है। कब? बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ लास्ट इंटरेस्ट होल्डर, जो लास्ट इंटरेस्ट होल्डर है उसके हित के अंत होने से पहले उस व्यक्ति को एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए जिसको ये प्रॉपर्टी दी गई है। ओके, अगर वो व्यक्ति नहीं आता है इन एग्जिस्टेंस, द ट्रांसफ़र वुड बी वॉइड एंड द प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल ओनर। Okay, now see the example. Property can be transferred to A for life, then to B for life, then to C for life, provided A, B, C are living on the date of transfer। ठीक है, इन सभी का ट्रांसफ़र की डेट पर, मैंने कहा ट्रांसफ़र यानी संपत्ति अंतरण की डेट पर जीवित होना इन सभी का आवश्यक है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, अगर द रिजल्ट ऑफ रूल अगेंस्ट परपिचुइटी इज दैट द माइनॉरिटी इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज द लास्ट पीरियड बियॉन्ड विच नो स्टेट कैन बी मेड टू वेस्ट। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट कि जो परपिचुइटी क्रिएट की जाएगी इस सेक्शन के अंतर्गत जीवित व्यक्तियों के जीवन काल प्लस माइनॉरिटी पीरियड ऑफ द पर्सन टू whom इट बिलोंग्स या टू whom द प्रॉपर्टी इज गिवन और टू whom एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज गिवन, उसके माइनॉरिटी पीरियड तक ही शाश्वतता क्रिएट की जाएगी। यदि शाश्वतता इससे बियॉन्ड जाती है तो रूल अगेंस्ट प्रॉपर्टी के कारण ऐसा अंतरण शून्य हो जाएगा। ओके, now we will see the exceptions of the rule against perpetuity। अब हम शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अपवाद को वन बाय वन देखेंगे। These exceptions are as follow। ये एक्सेप्शन इस प्रकार हैं। फर्स्ट वन इज it is not applicable to a case where the property is transferred
फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक, यानी यदि एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक सेक्शन 18, तो उस अंतरण पर शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होंगे। अ लीज विथ अ कोवेनेंट फॉर रिन्यूअल डज नॉट ऑफेंड द रूल अगेंस्ट परपिचुटी, अर्थात एक ऐसी लीज विथ अ कोवेनेंट और कंडीशन जिसके साथ लगा है कि इसको रिन्यू किया जा सकता है, वो लीज रूल अगेंस्ट परपिचुटी यानी शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उल्लंघन नहीं करेगी। नेक्स्ट, इट डज नॉट अप्लाई टू द वेस्टेड इंटरेस्ट, शाश्वतता के विरुद्ध नियम निहित हित पर अप्लाई नहीं करते। द एक्सेप्शन टू द रूल अगेंस्ट परपिचुटी ऑल्सो इंक्लूड मॉर्टगेजर्स राइट ऑफ रिडम्पशन। ओके, नेक्स्ट वन इज द रूल अगेंस्ट परपिचुटी डज नॉट अप्लाई टू पर्सनल एग्रीमेंट। ये जो रूल अगेंस्ट परपिचुटी है ये पर्सनल एग्रीमेंट पे अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि पर्सनल एग्रीमेंट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ क्लास। नेक्स्ट, अल्टीरियर ट्रांसफर। And last 3, 8, 9, 10, these 3 points belong to section 17, which provides about accumulation of property. Any direction for accumulation of property can create payment of debt, provision for the portion of children, प्रिवेंशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी। धारा 17 के अनुसार किसी निदेश पर प्रभाव ना डालेगी। इन इंग्लिश, एनी डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ डेप्ट, प्रोविजन फॉर द पोर्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इन पर प्रभाव नहीं डालेगी। ओके, these 3 points is provided under section 13, धारा 17, जो कि संचय के लिए निदेश से संबंधित है। This is all about rule against perpetuity and its exceptions. Okay, thank you.